Students, our today's topic is Servlet Interface. Servlet Interface provides common behavior to all the servlet. Servlet Interface defines methods that all servlet must implement. Servlet Interface के पास कुछ methods होते हैं जो सभी servlet को उस method का implement करना पड़ता है. Last time हम लोगों ने देखे थे servlet देखे थे, सर्वलेट एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स देखे थे, इसके भी मेथड्स देखे थे, वेब सर्वर और वेब कंटेनर देखे थे. यहाँ तक लास्ट टाइम देखे थे. आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर्वलेट इंटरफेस. ओके, सर्वलेट इंटरफेस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर तुमको सर्वलेट क्रिएट करना है तो सर्वलेट इंटरफेस के जो भी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. तो अभी कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स है सर्वलेट के, इन सर्वलेट इंटरफेस के? देयर आर 5 मेथड्स इन सर्वलेट इंटरफेस. द इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय आर द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट. दीज आर इन्वोक्ड बाय वेब कंटेनर. देखो मेथड, उसमें फर्स्ट मेथड है पब्लिक वॉइड इनिट. ओके, पब्लिक वॉइड इनिट servlet config initializes the servlet. It is the lifecycle method of servlet and invoked by the web container only once. ये हमने लाइफ साइकिल में भी देखे थे, सर्वलेट की लाइफ साइकिल देखे थे. उसके अंदर था पब्लिक वॉइड इनिट. इनिट मतलब सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन, ये होता है पब्लिक वॉइड इनिट. सेकेंड मेथड है उसका पब्लिक वॉइड सर्विस सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स. Provide response for the incoming request. It is invoked at each request by the web container. ये हर request को response provide करता है. इसका थर्ड मेथड है public void destroy. Is invoked only once and indicate that servlet is being destroyed. Servlet destroy करने के लिए public void destroy. Then public servlet config get servlet config. Return the object of servlet config. servlet config का जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा. उसके बाद है public string get servlet info. Return information about servlet such as writer, copyright, version, etc. जो भी servlet की information है, उसका writer कौन है, copyright क्या है, version क्या है, वो रिटर्न करेगा. 5 methods देखे हमने servlet interface के. Now our next topic is generic servlet class. Generic servlet class implements servlet, servlet config, and serializable interfaces. It provides the implementation of all method of these interface except the service method. Service method को छोड़ के वो सब method को implement करता है. Generic servlet class. Generic servlet class can handle any type of request, so it is called protocol independent. ये कोई भी type की request handle कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, protocol independent. Now there are some methods of generic servlet class. First is public servlet context get servlet context. Return the object of servlet context. Servlet context का जो object है वो return करेगा. Second method है public string get any parameter string name. Return the parameter value for the given parameter name. Parameter value return करेगा. Public enumeration get init parameter name. Return all the parameters defined in web.xml file. web.xml file में जितने भी parameters define किए हुए वो return करेगा. Next है public string get servlet name. Return the name of servlet object. servlet object का जो name है वो return करेगा. उसके बाद public void log string message. Return the given message in the servlet log file. servlet की log file में जो message है वो रिटर्न करेगा. 2 टॉपिक हो गए, सर्वलेट इंटरफेस और सेकंड टॉपिक है जेनेरिक सर्वलेट क्लास. नेक्स्ट टॉपिक है एचटीटीपी सर्वलेट क्लास. The HTTP servlet class extends the generic servlet class and implements serializable interface. It provides HTTP specific methods such as doGet, doPost, doHead,
डू ट्रेस एक्सेट्रा। इसके अंदर कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिक मेथड्स कौन से होते हैं? डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ट्रेस एक्सेट्रा। Methods of HTTP servlet class. There are many methods of HTTP servlet class. They are as follows. First method क्या है इसका? Public void service servlet request servlet response dispatches the request to the protected service method by converting the request and response object into HTTP type. ये क्या करता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है HTTP टाइप में। Second, a protected void do get HTTP servlet request, HTTP servlet response handles the get request is invoked by web container. Do get मतलब के वो handle करेगा, get request को handle करेगा। उसके बाद protected void do post, protected void do post HTTP servlet request, HTTP servlet response handles the post request. It is invoked by the web container. ये post request को handle करेगा। उसके बाद है protected void do head HTTP servlet request. It is invoked by web container. जो head request है उसको handle करेगा। उसके बाद है protected void do option HTTP servlet request, HTTP servlet response handles the options request. ऑप्शन रिक्वेस्ट जितने भी रहेंगे वो हैंडल करेगा। और ये सब जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से इन्वोक होते हैं? वेब कंटेनर से। सब रिक्वेस्ट जो है वो वेब कंटेनर से ही इन्वोक होते हैं। पहला वाला कौन सा था? सर्विस मेथड। दूसरा कौन सा है? डू गेट। थर्ड डू पोस्ट। उसके बाद डू हेड, डू ऑप्शन। नाउ प्रोटेक्टेड वॉइड डू पुट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स हैंडल्स द पुट रिक्वेस्ट। ये कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा? पुट रिक्वेस्ट। इट इज इन्वोक्ड बाय द वेब कंटेनर। ये भी वेब कंटेनर से इन्वोक होंगे। Next, a protected void do trace HTTP servlet request, HTTP servlet response handles the trace request. It is invoked by the web container. ये क्या कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे? ट्रेस रिक्वेस्ट। ये कहाँ से इन्वोक होंगी? वेब कंटेनर से। Next, a protected void do delete HTTP servlet request, HTTP servlet response handles the delete request. It is invoked by the web container. ये कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा? डिलीट वाले रिक्वेस्ट को। और ये भी वेब कंटेनर से इन्वोक होंगी। लास्ट है प्रोटेक्टेड लॉग गेट लास्ट मॉडिफाइड HTTP servlet request returns the time when HTTP servlet request was last modified since midnight January 1 January 1970 GMT. जब लास्ट मॉडिफाइड किया, कब लास्ट मॉडिफाइड किया, वो रिटर्न करेगा टाइम तुमको। इसमें टाइम रिटर्न होगा लास्ट वाले इसमें। ये क्या देखिए हमने HTTP सर्वलेट क्लास के मेथड्स। बोलो जरा कौन से मेथड्स थे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? लेट्स रिपीट। आज क्या क्या देखे? सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस के मेथड्स बोलो कौन से थे? पब्लिक वॉइड इनिट, उससे क्या होता है? सर्वलेट इनिशियलाइज होता है। सेकेंड पब्लिक वॉइड सर्विस, उसमें क्या होता है? वो रिस्पॉन्स देता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको रिस्पॉन्स देता है सर्विस में। उसके बाद पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, उससे क्या होता है? सर्वलेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। सर्वलेट कॉन्फिग का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करता है। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इंफॉर्मेशन इन्फो, रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट। सर्वलेट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न करता है, जैसे कि राइटर कौन है, कॉपीराइट कौन है, वर्जन क्या है, वो रिटर्न करता है। ये होते हैं सर्वलेट इंटरफेस के मेथड। 5 मेथड्स थे।
देन जेनेरिक क्लास सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट क्लास, उसमें मेथड से उसका फर्स्ट मेथड है पब्लिक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट सर्वलेट। ये क्या रिटर्न करता है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। सेकेंड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट इनिट पैरामीटर। ये क्या रिटर्न करेगा? पैरामीटर वैल्यू, जो भी गिवन फॉर द गिवन पैरामीटर नेम, ये रिटर्न करेंगे पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर नेम का जो पैरामीटर वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे। उसके बाद है पब्लिक न्यूमरेशन गेट इनिट पैरामीटर। ये क्या रिटर्न करेंगे? ऑल पैरामीटर्स डिफाइंड इन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जो भी पैरामीटर्स है वो रिटर्न करेगा। पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट नेम, रिटर्न द नेम ऑफ सर्वलेट ऑब्जेक्ट। सर्वलेट ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो रिटर्न करेगा। देन पब्लिक वॉइड लॉग राइट्स द नेम गिवन मैसेज इन द सर्वलेट लॉग फाइल। सर्वलेट की लॉग फाइल में मैसेज रिटर्न करेगा, राइट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या देखे हमने? एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास में कुछ मेथड्स देखे थे। क्या था फर्स्ट मेथड? पब्लिक वॉइड सर्विस। ये क्या करेंगे? डिस्पैचेस द रिक्वेस्ट टू द protected service method by converting the request and response object into HTTP type. रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को HTTP टाइप में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट। डू गेट मतलब गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। डू पोस्ट, नेक्स्ट कौन सा है? डू पोस्ट। डू पोस्ट मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। नेक्स्ट है डू हेड, हैंडल द हेड रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसके बाद है डू ऑप्शन, ऑप्शन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। डू पुट, पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। डू ट्रेस, ट्रेस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और डू डिलीट मतलब डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसके बाद लास्ट है गेट लास्ट मॉडिफाइड, मतलब जब वो लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुआ था वो टाइम रिटर्न करेगा। ओके, समझ में आया सबको? उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट की लाइफ साइकिल हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में देखे थे, याद है किसी को? देखो सर्वलेट की लाइफ साइकिल, एक मिनट है। क्या थी फर्स्ट स्टेप? क्या थी लाइफ साइकिल में? सर्वलेट को लोड करते थे, राइट? लोडिंग द सर्वलेट व्हेन द वेब सर्वर स्टार्ट्स अप द सर्वलेट कंटेनर डिप्लॉय एंड लोडिंग ऑल द सर्वलेट। पहले सब सर्वलेट को लोड करता है। सेकंड स्टेप क्या थी? क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट कंटेनर क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस पर सर्वलेट। एक सर्वलेट क्लास के लिए सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट करता है। एंड ऑल द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम सर्वलेट इंस्टेंस, और उसी इंस्टेंस पे जितने भी रिक्वेस्ट है वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। ये होता है क्रिएटिंग इंस्टेंस। सेकंड स्टेप थी। थर्ड स्टेप क्या थी? इन्वोक इनिट मेथड। इनिट मेथड को इन्वोक करता है। थर्ड स्टेप क्या है? इन्वोक इनिट मेथड। वंस ऑल द सर्वलेट क्लासेस आर instantiated, the init method is invoked for each instantiated servlet. This method initialize the servlet, इनिशियलाइज करता है सर्वलेट को। पहले क्या करते हैं? स्टेप वन में सर्वलेट लोड करते हैं, सेकंड में क्रिएट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, थर्ड में इनिट मेथड से सर्वलेट को इनिशियलाइज करते हैं। फोर्थ क्या करते हैं? इन्वोक सर्विस मेथड। ईच टाइम द वेब सर्वर रिसीव्स फॉर सर्वलेट spawns a new thread that calls service method। सर्विस मेथड को कॉल करेंगे। और फिफ्थ क्या था? इन्वोक डिस्ट्रॉय मेथड। व्हेन सर्वलेट कंटेनर शट डाउन, इट अनलोड ऑल द सर्वलेट एंड कॉल डिस्ट्रॉय मेथड फॉर ईच इनिशियलाइज सर्वलेट। डिस्ट्रॉय करता है पूरे सर्वलेट को। ये थे इसके 5 मेथड।
Servlet क्या है? Servlet is a server-side scripting technique supported by Java programming language. Servlet is a Java class file that can be derived the features of web server which host application and can be accessed through request response programming model. Servlet क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्निक है जो कौन सपोर्ट करता है? जावा जिसको सपोर्ट कर रहा है, जावा लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है उसको। और ये कैसे एक्सेस कैसे करता है इसको? रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोग्रामिंग मॉडल के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, फिर सर्वलेट क्या करता है? उसको रिस्पांस भेजता है, सर्विस देता है ना, सर्विस में रिक्वेस्ट आती है और रिस्पांस भेजता है, तो वो सर्विस देता है। तो ये उसके 5 स्टेप्स थे, सॉरी लाइफ साइकिल के स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप क्या थी? लोडिंग द सर्वलेट। सेकंड स्टेप क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट। थर्ड इन्वोक इनिट पैरामीटर इनिट मेथड। और फोर्थ इन्वोक सर्विस मेथड। और फिफ्थ थी इन्वोक डिस्ट्रॉय मेथड। ये उसके 5 स्टेप्स थे लाइफ साइकिल के। ये हो गई हमारी सर्वलेट की लाइफ साइकिल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस। इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, एंड कर देती हूँ मैं क्लास।